नमस्कार सर। Very good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। As part of the special campaign 3.0 and as per the instructions of Ministry of Education, Government of India, Indira Gandhi National Open University is also participating in this special campaign 3.0. And as part of this campaign, we have to also perform Swachhata Hi Seva campaign also. So under this campaign, we have to organize some webinars which will project on the utility of Swachhata in our lives. So for that, we have organized a webinar today on the topic the environmental and health effects of waste management. And to deliver that lecture in this webinar, we have with us Anju Gupta madam, who is an academic counselor at our study center, Nehru Memorial Government College, Mansa. For this, we heartily welcome you, ma'am. यस, थैंक यू सर। गुड इवनिंग In this, सर। namaskar, madam. थैंक यू। Today, we have with us our respected regional director, madam Dr. Santosh Kumari ji. Along with her, we have Shri Pappu Singh ji, Assistant Registrar, and all the staff members of Regional Center Khanna. Along with them, we have coordinators from Ludhiana, Guru Nanak Girls College, Model Town, Sant Kabir College, Zira, Nehru Memorial Government College, Mansa, Dr. Avinash ji, and Dr. Rajendra Singh Sahil ji from Gursar Sudhar Study Center. So I, on part of IGNOU Regional Center Khanna, welcome you all in this webinar. And to formally start this program, I would like to invite our respected Regional Director, Madam Dr. Santosh Kumari ji. Madam, please start. थैंक यू डॉक्टर परमेश चंद्र जी। मैं इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से मैडम अंजू गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ में अपने क्लीग्स का पप्पू सिंह, डॉक्टर परमेश जी और बाकी स्टाफ का, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं आज के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का ही मैं आपका बहुत बहुत मीन्स आई वेलकम। जैसे कुछ सेंटर्स हैं 2206 लुधियाना से हैं, राजेंद्र साहिल जी हैं, और सर हैं अविनाश जी हैं, डॉक्टर अविनाश जी फ्रॉम मानसा। तो मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अपने सारे ही स्टाफ का। और आज मैं कुछ पहले, जैसे आज का जो वेबिनार है वो है द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री का कैंपेन चल रही है स्वच्छता ही सेवा, उसके अंडर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम की है और कर भी रहे हैं। जैसे कि श्रमदान ये घंटा जो था वो, उसमें भी इग्नू आरसी खन्ना ने पार्टिसिपेट किया, और कैंपस की क्लीनलीनेस के बहुत सारी एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड की सारे स्टाफ ने बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अभी भी हम और सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस अभियान के अंडर, और एक हमारा जो मेन था कि वी हैव टू कंडक्ट ए वेबिनार, क्योंकि आज का जो समय है एनवायरनमेंट की, उसके कैसे इसको साफ रखना है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट है, वो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे एनवायरमेंटल और हेल्थ पे पड़ रहा है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, ये आज का बहुत बड़ा सवाल है। तो उसी को ध्यान में रखते हैं मैंने कुछ शब्द कहना चाहूँगी इसके बारे में। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट इज द वन ऑफ द सीरियस कंसर्न्स दैट ऑल of us are facing today. As the industrialization had started, from that moment onwards, waste management had become a matter of concern. Nowadays, the situation is getting too worse as we don't have a safe waste management system.
The wastes are getting disposed here and there. That leads to environmental pollution. आप जैसे सभी देखते हैं कि जगह जगह कूड़ा के ढेर लगे हुए हैं, गार्बेज के ढेर लगे हुए हैं, और उसकी वजह से इतना पोल्यूशन फैल रहा है, मीन्स दैट इज वेरी डिजास्टर। एक कह लो कि बंगार है इस एनवायरनमेंट को। तो उसको मैनेज करने के लिए द गैसेज आर आल्सो कमिंग फ्रॉम दीज वेस्ट, and which is very harmful to the atmosphere and also to the living beings, as they cause air pollution, which lead to a diseases. It also causes global warming. As many factories and industry dispose their water waste in the water, that leads to water pollution, which is very harmful to our water bodies. तो जैसे आप देखते हैं कि कितना बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है, दे थ्रो देयर वेस्ट इन दी streams, rivers, and other small places where means water is polluted. We know that many rural areas don't have sufficient toilets and those with access to drainage system, which is resulting in spills. There are a lot of ways for disposing the waste, such as recycling and reusing the usable portion of the discarded items. But the reality is that we are not using these methods. All of these will be effective only if we strive to initiate them in our everyday lives. If we are not aware about the harmful side of waste disposal, then condition is going to get more worst. We humans are the only reason for harming our environment and other living beings. So try to dispose the waste properly and bring a habit of proper waste management. So therefore, for keeping our environment clean and green, we have to protect our nature. If we will not protect our nature, then nature will not protect us. तो ये आज के इस जो वेबिनार का मेन कह लो एसेंस है, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, ताकि हम इसके जो बैड इफेक्ट्स है एनवायरनमेंट पर, तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो अभी मैं कॉल करूंगी मैडम को, रिक्वेस्ट करूंगी मैडम अंजू गुप्ता जी को कि वो आज के जो वेबिनार की नोट एड्रेस ही है, तो आप सभी को पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस करें। वेलकम मैम। Thanks, ma'am. Myself is Anju Gupta, and today's my topic is environmental and health effects of waste management. Now, first of all, we all know what is environment. Environment means surroundings, which affects our ability to live on the earth. जो हमारा आला दुआला है, जो सराउंडिंग्स है, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायो मीन्स लाइव, लिविंग थिंग्स जो आ जाती हैं, इसमें आ जाते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एंड अदर इज एबायोटिक कंपोनेंट्स which are non-living, like soil, water, sunlight, temperature. These are all included in the environment. पर जब हम ये इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, जिस वातावरण की, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, उसमें पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है। इसको सुधारने का काम जो है वो केवल एक व्यक्ति का नहीं है, वह है हर व्यक्ति, मतलब हर एक, मतलब ये जो काम है इसको सुधारने का सरकार का नहीं है, हर व्यक्ति का है, हर एक सामाजिक संस्था का है, जिसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना है। लोगों में वातावरण के प्रति चेतना जगाने के लिए स्कूल कॉलेज में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो इसमें निभाते हैं। एक कहावत भी कही गई है भी, इलाज से परहेज अच्छा होता है। अगर एक बार भी हमारे इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है वो नष्ट होने लग जाए, तो इसको दोबारा से ठीक करना, उससे पहले ही इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए।
क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना बहुत जरूरी है। जो हम इन्वायरमेंट को देंगे वही वापस हमें इन्वायरमेंट से मिलेगा। इसके लिए कुछ इको क्लब एक्टिविटीज जो हैं वो करवाई जाती हैं स्कूल कॉलेजेस में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। जैसे इको क्लब एक्टिविटीज में पेंटिंग कंपटीशन होते हैं जैसे, और एजुकेशनल ट्रिप लेके जाए जा सकते हैं। इसमें क्विज होते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन्स जो हैं इको क्लब एक्टिविटीज में करवाए जाते हैं ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति बच्चों को, लोगों को अच्छी तरह से पता चल सके। पर जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है उस दिन प्लांटेशन की जाती है, ट्री प्लांटेशन की जाती है। उस दिन बहुत सी स्कूल कॉलेजेस में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, जैसे कि बहुत सी संस्थाएं, मतलब सामाजिक संस्थाओं से जो लोग जुड़े होते हैं वो भी ट्री प्लांटेशन करते हैं। बाहर लोगों को भी पता चलता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्यों मनाया जाता है। वातावरण के प्रति जागृत किया जाता है। एज वी नो देयर इज अ मेन लिंक बिटवीन द environment and the development of country. If our environment is healthy, better, the people will healthy and remain fit. There is so much development of that country. If the environment is not good, then people will unhealthy and there will be no development of that country. बट जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो बना रहे हैं इसके लिए कि हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो बचाया जा सके किसी तरह से भी। हमारे पोल्यूशन जो है वो हो रहा है जो उसको भी कम किया जा सके। अब जैसे इसमें है टॉपिक वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है टू रिड्यूस द अनयूजेबल मटेरियल्स। मींस कचरे का जो गार्बेज है उसका उचित ढंग से प्रबंध किया जाए। जैसे कचरे को अवैध रूप से सड़कों के किनारे फेंक दिया जाता है या फिर जंगलों में फेंक दिया जाता है, नदियों नालों में फेंक दिया जाता है, उससे मतलब प्रकृति जो है हमारी सारी डिस्टर्ब हो जाती है, किसी ना किसी रूप में प्रदूषण होता रहता है। जैसे अभी हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी होके गई है, तो उसमें क्या होता है गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। बहुत से लोग जो है वो उनकी मूर्ति को मतलब बहा देते हैं पानी में। ते अब अगर देखें नवरात्रे चल रहे हैं, लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं इसकी वेस्ट मैनेजमेंट की। इसमें भगवती माता की जो मूर्ति है उसका विसर्जन किया जाता है, साउथ की तरफ ज्यादा किया जाता है इसका। जब ऐसे हम लगा लें दशहरा फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें क्या होता है जो हम पूजा सामग्री होती है सारी, जा गली गली में मतलब रावण को जलाया जाता है। काफी बच्चे भी इकट्ठे होके ऐसे करते हैं, तो उनके जो पुतला जलाया जाता है उसके बाद जो एशीज वगैरह बचती हैं, जो भी मटेरियल बचता है उसको सारा ही पानी में बहाया जाता है। जैसे गणेश विसर्जन हो गया, भगवती माता की मूर्ति का विसर्जन हो गया, तो उनके मतलब उनको पेंट करने के लिए जो कलर वगैरह यूज किए जाते हैं वो लेड, मरकरी, ऐसे कलर यूज किए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे मतलब जो मरकरी है, मरकरी क्या करता है हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा खराब करता है और हमारी किडनीज को अफेक्ट करता है। जो लेड मरकरी है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो इससे जो मेराइन लाइफ है, एक्यूटिक लाइफ है, वो सारी ही डिस्टर्ब होती है। वाटर पोल्यूशन मेन इसी से ही होता है, पर हम लोग आस्था में इस बात को शायद समझ नहीं सकते। जितनी भी एक्यूटिक लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मतलब सॉरी एनिमल्स नहीं, जो पानी में रहने वाले एक्यूटिक है, और आप लगा लें प्लांट्स है, मेराइन लाइफ है, जितनी भी बैक्टीरिया है, सारे ही खत्म हो जाते हैं इससे। क्योंकि जो कलर करने के लिए ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, लेड और मर्करी, ये बहुत ही हार्मफुल है। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट जो है इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो हो रहा है। जैसे हम कहें वाटर पोल्यूशन की तो अभी हमने लेटेस्ट एग्जांपल जो दी है। अब लगा लें जैसे एयर एंड लैंड पोल्यूशन, इससे होता है वेस्ट मैनेजमेंट से। कैसे, जैसे पराली को लेटेस्ट जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं,
मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी चलाई जा रही हैं या कंपटीशन करवाए जा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, या बच्चों को जागृत किया जा रहा है ताकि वो जाके घर पे भी अपने पेरेंट्स को जाके बताएंगे बच्चे जो है। जैसे लेटेस्ट जो है वो पराली की समस्या है। इससे क्या होता है, खेत में जो पराली मतलब जलाई जाती है, जो उसका रेजिड्यू रह जाता है, वो उससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, जैसे उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो बाकी जो है वो इधर उधर फेंक दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है। बाकी जो इससे गैसेस निकलती हैं वो सारी क्या है, सब हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रही हैं। एयर एंड लैंड पोल्यूशन तो इससे ही होता है ज्यादा। बाकी आ गया जैसे सेवरल क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं, अभी मैम ने भी बताया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा गैसेस रिलीज हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो मेन कारण है कि जो सॉलिड वेस्ट जलाया जाता है, और मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। डिजीजेस हो रही हैं काफी तरह की, जैसे अब पराली जलाई जाती है तो हम बाहर नहीं निकल सकते घर से, तो हमें क्या है मतलब ये आंखों में काफी ज्यादा इन्फेक्शंस हो जाती हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इससे। तो ये सारे पोल्यूशन जो है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अगर हम बात करें इन सब की, तो ये सब क्या है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट का रिजल्ट है। जैसे हम अब देखते हैं मतलब खुला कूड़ा पड़ा होता है सड़कों के किनारे, नदियों में फेंक दिया जाता है, तो उसमें क्या क्या शामिल होता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स में, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, मेडिकल वेस्ट हो गया, हॉस्पिटल की लगा ले मेडिकल जो हो गया, सिरिंजेस वगैरह हो गई, कांच हो गया, जैसे प्लास्टिक्स हो गया। प्लास्टिक्स तो मेन है इसमें। अ, हम अगर देखें तो खुले कूड़े में ऐसे ही चीजें जो होती हैं, अगर हम चाहें तो जैसे घर का जो डोमेस्टिक गार्बेज होता है तो उससे खाद वगैरह बनाई जा सकती है। पर बहुत कम लोग जो है इसके लिए मेहनत करते हैं। जो डोमेस्टिक गार्बेज है उससे हम काफी अच्छी खाद बना के पौधों में, खेतों में डाल सकते हैं। बट सॉलिड वेस्ट के लिए ये जो इंक्रीज हो रहा है सॉलिड वेस्ट, इसके लिए जो दो मेन कारक है मुख्य, वो है एक तो रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जो हम घरों में कूड़ा निकालते हैं या फैक्ट्रीज में होता है सारा कूड़ा, मतलब ढेर लग जाते हैं इसके। हम शहरों के बाहर देखते हैं कूड़ा ऐसे पड़ा होता है, ढेर लगे होते हैं, उन पर जानवर चढ़े होते हैं। अगर कोई भी जानवर अगर इसको निगल ले, खाता है, तो उसकी डेथ भी हो जाती है, मर भी जाती है, ऐसा कूड़ा उसमें पड़ा होता है। अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण जो है उसमें हो गया, मतलब गांव से लोग जो हैं वो शहरों में आके बस रहे हैं, बहुत ज्यादा शहरों में आबादी बढ़ रही, इससे बढ़ रही है सारी, तो इससे पोल्यूशन जो है, इसकी अमाउंट जो है सॉलिड वेस्ट की और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अगर हम देखें, अगर ये जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो एक ब्रीडिंग मतलब ग्राउंड बन जाता है फॉर द मॉस्किटोज एंड बीज दैट दैट कॉजेज सो मच डिजीजेस लाइक कॉलरा। मतलब बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजीजेस आती हैं, इनकी वजह से ही आती हैं। जो सॉलिड वेस्ट है इसका मैनेज करना सही बहुत जरूरी है। जैसे हम सब जानते हैं कि 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता पर जोर दिया, पर हर साल अब स्वच्छता को लेकर इसका पखवाड़ा भी मनाया जाता है, जैसे 15 दिन के लिए स्कूल, कॉलेजेस और संस्थाओं में भी सारे सफाई की जाती है। पर अगर हम देखें 2023 का जो मूल विषय है वो है भारत को कचरा मुक्त बनाना। कचरा मुक्त मतलब गार्बेज फ्री बनाना। इसके लिए जो मेन टॉपिक रखा गया था वो था से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक बैग यूज किए जाते हैं, बॉटल्स यूज की जाती हैं, टी कप्स यूज किए जाते हैं, और मतलब जो प्लास्टिक के प्लेट्स वगैरह यूज किए जाते हैं। जो भी प्लास्टिक है ये सारा हार्मफुल है हमारे लिए।
जो भी ये प्लास्टिक कलेक्ट किया जाएगा कचरे से, कचरे में जो प्लास्टिक पड़ा होता है, कांच पड़ा होता है, मेडिकल जितने भी है, एग्रीकल्चर वेस्ट पड़ा होता है, मेडिकल वेस्ट पड़ा होता है, तो उसमें प्लास्टिक तो मेन है, जो कि 2023 का मूल विषय है कि हमने इसको यूज करना ही नहीं है। से नो टू प्लास्टिक। जितना भी प्लास्टिक इकट्ठा किया जाता है कूड़े से, गार्बेज से, उसकी रिसाइकलिंग होनी बहुत जरूरी है। कहते हैं अगर हर साल 34 लाख टन प्लास्टिक जो है वो कचरे में से इकट्ठा किया जाता है। प्लास्टिक जो है उसको हम यूज भी कर सकते हैं अगर कचरे में से निकाला जाए, सही रिसाइकलिंग करनी हो इसकी। जैसे रोड्स बनाने में, सड़कों के निर्माण में यूज कर सकते हैं। बाकी इसको ईट जो ब्रिक्स आती हैं, टाइल्स आती हैं, उसमें भी प्लास्टिक का यूज किया जा सकता है, जो हम उसको कचरे से, गार्बेज से निकालते हैं। उसकी सही जो मैनेजमेंट है वो ऐसे हो सकती है। इसको कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ। मीन्स जो वेस्ट चीज पड़ी है जिसका कोई फायदा नहीं है हमको, मतलब वो गलती सड़ती भी नहीं है प्लास्टिक, तो वेस्ट टू वेल्थ मीन्स उसको कोई यूजेबल वर्क में लगाया जाता है। हमारी सोच जो है वो एनवायरनमेंट को क्या है कि स्वच्छ बनाए, इसको साफ सुथरा बनाए। वेस्ट टू वेल्थ की वजह से ही हमारी जो सोच है वो बदलेगी। इन्वायरमेंट का सीधा असर जो है वो हमारी हेल्थ पर पड़ता है। प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा दैट इज मेड अप फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स विच आर मेनली केमिकल्स। प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ ऑयल एंड गैस। प्लास्टिक जो है वो ज्यादा डंप्ड किया जाता है, इज मेनली डम्प्ड इनटू ओशंस। ओशंस में हम देखते हैं कि कितनी मेराइन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो रही है इसी पोल्यूशन की वजह से। अगर हम कई बार देखा है हमने कि शहर में से कई बार हम गुजरते हैं तो खुली जगह पे कई बार इतनी मतलब फाउल स्मेलिंग जो है वो आ रही होती है। वो किसकी वजह है? प्लास्टिक की बर्निंग से। उससे इतनी ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे डाइऑक्सन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सारे डाइऑक्साइड जो हैं सारे इसके जलाने से निकलते हैं। लाइक फ्यूरेन्स, mercury, and polychlorinated biphenyls. All these are released by the burning of plastics. So much carbon dioxide is released by the burning of plastic. When we say no to plastic, अगर हम खुद सारे कहने लग जाएं, इसके बारे में रैलीज निकालें, इसके बारे में स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन करवाए जाते हैं, स्लोगन राइटिंग होता है, चार्ट बनवाए जाते हैं बच्चों से कि प्लास्टिक यूज नहीं करनी, इसके बारे में पेंटिंग्स करवाई जाती हैं ताकि बच्चों को पता चले कि हमने प्लास्टिक जो है वो यूज नहीं करनी, इसको बाय बाय बोलना है प्लास्टिक को। तो ऐसे मतलब वी देन स्टार्ट कैंपेनिंग अबाउट से नो यूज टू प्लास्टिक। कंपनीज जो हैं दे दे विच प्रोड्यूस प्लास्टिक, दे अब मतलब जो प्लास्टिक वो प्रोड्यूस करती हैं कंपनीज, तो उनको पता चल जाता है दैट पीपल आर अवेयर ऑफ नॉट यूजिंग द प्लास्टिक एंड अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। A single plastic bag takes 1000 years to decompose. एक सिंगल प्लास्टिक बैग जो है वो 1000 साल लेता है डिकम्पोज होने के लिए। प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज होता नहीं है, इससे लैंड पोल्यूशन भी होता है। अगर हम देखें जो एनिमल्स हैं, जैसे काऊ है, बफेलोज है, या और भी कई एनिमल्स हमने देखे हैं कूड़े के ढेर पर चढ़े होते हैं, शहर के बाहर जो ढेर लगे होते हैं उनके कूड़े पर चढ़े होते हैं, तो वो अगर वो पॉलीथीन लिफाफा वगैरह अंदर इनगल्फ कर लें तो क्या होता है, उससे उनकी डेथ भी हो जाती है। सो इको फ्रेंडली बैग शुड बी यूज्ड। प्लास्टिक शुड बी प्रॉफिट। प्लास्टिक तो बिल्कुल ही बैन होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी पॉलिसीज जो हैं प्लास्टिक के लिए चलाई जा रही हैं।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, देन इट प्रोटेक्ट्स अवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को बचाना भी काफी हद तक हमारे हाथों में ही है, क्योंकि जो जहरीली गैसें निकल रही हैं, जो हम प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं, जो भी जिस तरह का भी पोल्यूशन हो रहा है, उसको हमें रोकना चाहिए सबको। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अकेली सरकार का काम नहीं है, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का काम नहीं है, इसमें हर एक व्यक्ति को जागृत किया जाना चाहिए। इसी वजह से हम देखते हैं जैसे स्कूल कॉलेजेस में काफी हद तक कंपटीशन जो सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों के थ्रू घर पर भी बच्चे जाकर जो पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने आस पड़ोस में बात करते हैं, जैसे आज ये कंपटीशन हुआ, ये कंपटीशन हुआ, तो उनको इस वजह से अवेयरनेस आती है लोगों में कि हमने पोल्यूशन जो है उसको कैसे रिड्यूस करना है। हेल्थ जो है उसके मतलब ये काफी ज्यादा नेगेटिव इश्यूज जो होते हैं, हेल्थ के मतलब जो इश्यूज होते हैं सारे नेगेटिव बच जाते हैं अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है हेल्दी नहीं है। इन्वायरमेंट जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट वी गिव टू इन्वायरमेंट वी ऑलवेज टेक। So there is a formula for 5R should be used. We all are familiar with that. What are that 5R? Like refuse, reduce, recycling, reuse and repurpose. रिफ्यूज, जैसे हम प्लास्टिक बैग यूज करते हैं तो हम सबको चाहिए कि हम उसको रिफ्यूज करें, हम उसको मना करें कि हम नहीं यूज करेंगे इसको, इसके बदले हम उस यहाँ पर इको फ्रेंडली बैग जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे रिड्यूस, जैसे हम देख रहे हैं जैसे सेव द इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव वाटर। अब हम देखते हैं कि शहरों में भी जैसे गांव में भी टैप ऑन है तो ऑन है, ब्रशिंग कर रहे हैं तो ऑन है, सब इसकी वजह से जो वाटर है सारा वेस्ट हो रहा है। हम कार वॉशिंग करते हैं अपने घर के आगे, तो इससे मतलब जो वाटर वेस्टिंग जो है उसको बचाया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। जितना हमारे हाथ में है कि हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, देन शुड वी डू। नेक्स्ट मतलब रिसाइकल। रिसाइकल जैसे पेपर आ गया, पेपर को हमने यूज किया फेंक दिया, अगर वो ठीक है यूज कर सकते हैं दोबारा तो मतलब उसको रिसाइकलिंग की बहुत जरूरत होती है, रिसाइकलिंग कर भी सकते हैं। हम देखते हैं कि पेपर बनाने के लिए बहुत से टन जो वुड है वो ट्रीज है वो काटे जाते हैं। नेक्स्ट है बोटल्स। बोटल जो हम यूज करते हैं प्लास्टिक्स की, उसकी भी रिसाइकलिंग हो जाती है। मेन जो है पेपर और बॉटल्स की रिसाइकलिंग होती है। नेक्स्ट है रीयूज। पेपर और बॉटल्स हम रीयूज कर सकते हैं दोबारा। रीपर्पस मीन्स यूजिंग वेस्ट फॉर अ डिफरेंट पर्पस। जो वेस्ट है जो हमारे घर पर पड़ा होता है, जैसे खाली बॉटल्स हैं उनको हम पोट बनाकर छोटे छोटे प्लांट भी लगा सकते हैं जो हमारे घर की ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाते हैं। ऐसे हम 5R का जो प्रिंसिपल है उसको यूज कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से काफी पॉलिसीज जो हैं वो चलाई जा रही हैं इसके लिए कि हम इन्वायरमेंट को हेल्दी कैसे करें, लोगों की मतलब जो हेल्थ इश्यूज हैं वो पॉजिटिव कैसे रहें, हमें डिसीजेस के से कैसे बचना है, वाटर पोल्यूशन से। वाटर पोल्यूशन तो काफी हद तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे हो रहा है वाटर पोल्यूशन जो है, बाकी जो हम विसर्जन करते हैं उससे भी लोगों को अवेयर होना चाहिए। लैंड पोल्यूशन जो है वो जैसे हम पराली वगैरह जलाते हैं उसके लिए भी हमने डिस्कस किया है। और जितने तरह का भी पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट है, उसको सही तरह से मैनेज किया जाना चाहिए, उसको रीपर्पस के हिसाब से यूज करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक है वो कितने मतलब अच्छे तरह से यूज हो सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया है रोड कंस्ट्रक्शंस में हो सकता है, ब्रिक्स में हो सकता है, टाइल्स में हो सकता है। तो हमें बहुत ध्यान से हर एक मतलब इन्वायरमेंट का जो हर एक पार्ट है हमने बचाना है, क्योंकि हमने उसी खुली हवा में सांस लेनी है। अगर हम उसको जो गंदा बना रहे हैं, उसको अनहेल्दी बना रहे हैं, तो वही हमारे पास वापस आएगा जो हम इन्वायरमेंट को दे रहे हैं। थैंक्स मैम।
थैंक यू मैम, आपने थैंक यू बहुत मैम। अच्छा बताया कि कैसे हमने रीयूज़ सारी चीज़ें करनी है वेस्ट मैनेजमेंट से। और ये क्योंकि आज का नहीं है, ये पहले से ही चल रहा है, लेकिन है कि अभी हम अवेयर हो गए हैं। और हाँ जैसे जी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आई है कि उसमें भी बार-बार यही कहा जाता है कि सारी वेस्ट चीज़ों को कैसे हमें मैनेज करना है। और कई बार हम जैसे देखते हैं कि मान लो बाहर सैर करने सुबह-सुबह जाते हैं और इतनी अच्छी ग्रीनरी होती है, प्लांट्स होते हैं, लेकिन वो कूड़े के जो है करकट के ढेर उसी में लगे होते हैं। तो इतना स्टिंकी होता है, तो लगता है कि हम सैर करने जा रहे हैं कि ये सारी उसको हम मिस बैड स्मेल ले रहे हैं। यस। है ना? तो ये मुझे कई बार बहुत ही चुभता है। और ऐसे ही है कि जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, पंचायत्स है, मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पे उनको ध्यान देना चाहिए। मान लो हम पूरे देश को तभी हम मैनेज कर पाएँगे कि अगर हम लोअर लेवल पे अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करें। तो कई बार मैं म्युनिसिपैलिटी वाले जो लोग हैं घर में आते हैं, तो उनको कहती हूँ कि इसको आप क्यों नहीं अच्छी तरह मैनेज कर रहे हो? कि जैसे एक मोहल्ले वाले का कूड़ा एक वो इतना बड़ा ढेर उसके लगा होगा, फिर दूसरे मोहल्ले का होगा, लेकिन अगर हम ऐसा उसको सारे ही कूड़े को, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के लोग तो कुछ उस एरिया में उतने ही है ना, 10 है या 15 हैं। अगर वो पूरा उसको मैनेज करे एक जगह पे, तो हम हो सकता है कि जो अलग-अलग ढेर लगे हुए हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही है कि हमारी पंचायत में है कि सरपंच इसको भी अपने गाँव की तरफ देखना चाहिए। और कई बार मेरे जैसे इंटरेक्शन होती है कि बाहर के लोगों में कि उन्होंने ऐसे फैक्ट्रीज़ लगाई हुई है कि इसका जो वेस्ट मैनेजमेंट को वो वहाँ से उससे एनर्जी उसको वो ले रहे हैं, जैसे बिजली का उत्पादन हो रहा है। क्या हमारे इधर ऐसा मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। कि ये जो है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी हम एम्प्लॉय भी कर सकते हैं लोगों को। और ऐसे कोई ना कोई इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री जो भी है वो हम लगा सकते हैं, ताकि इस वेस्ट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और ईंधन वगैरह उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे हम सभी के लिए फायदे वाला होगा। और एक बात और है जो आपने भी कहा है कि उसमें कि हमें कि वी हैव टू से नो टू प्लास्टिक, है ना? तो मुझे ये नहीं समझ आता, जब हमने वो चीज़ को हमारे फ़ायदे के लिए ही नहीं है, तो हम उसको बनाते क्यों? उसको प्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्या हम उसको रोक नहीं सकते हैं? है ना? तो य आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैम जैसे काफी स्टेट्स हैं, सिक्किम वगैरह, मतलब मैंने कई पढ़ा है इसमें स्टेट्स वगैरह। मैम उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से बैन किया हुआ है प्लास्टिक। पर हम कह तो रहे हैं से नो टू प्लास्टिक, बट वी आर यूजिंग प्लास्टिक। Everything is coming in the form of plastic, like plates, cups. We all use in the ceremonies, like festivals and other gatherings. We always use plastic. वही तो कह रही हूँ कि फिर जब हमें प्लास्टिक फ़ायदे वाली ही नहीं है, तो हाँ उसको जी, हाँ बनाते जी ही क्यों है? क्या मैम। तो है कि वो एक प्राइवेटाइज़ेशन है, कि वो हाँ गवर्नमेंट जी। को है कि मान लो कुछ पार्ट ये कर दिया कि ये कि इसको कंटिन्यू रखना है ना? ऐसे ही कह लो कि हम जो कोका कोला वगैरह ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम इतनी उसमें लगाए हुए हैं और तो ये सारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, तो हम उसको क्यों प्रोड्यूस ही क्यों करते हैं? उसकी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ क्यों लगाते हैं? है ना? हाँ जी मैम, मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही रही है ना इसकी मैम। हाँ, हाँ, जैसे मैम लेकिन पीछे पहले आया था मैम, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए से गवर्नमेंट के। हुँ, जैसे बैग वगैरह प्लास्टिक के नहीं यूज करने, हमने प्लास्टिक की कोई चीज नहीं यूज करनी। मेरे ख्याल से मैंने जब भी मार्केट में देखा तो सबके पास कपड़े के क्लॉथ बैग होते थे। हुँ, पर जब थोड़े दिन के बाद हो गया, मतलब तो अब देखना था मैडम, मतलब जो शॉपकीपर थे उनके पास भी लिफाफे नहीं मिलते थे, हमें घर से लेके जाना पड़ता था। पर हुँ। अच्छा लग रहा था तब। पर अब फिर वैसे ही हो गया, पहले जैसा ही। वही इम्पैक्ट थोड़े दिन रहता है, फिर इम्पैक्ट थोड़े वही दिन में। तो हाँ ये जी। हमारा कह फिर लो कि वैसे हो जाता है। दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हाँ हम जी। कोई भी चीज़ को जब कहा जाता है रिस्ट्रिक्शंस होती है तब तो हम थोड़ी देर उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअसली एक हैबिट फॉर्म नहीं करते हैं।
तो अगर हाँ ये जी। सारा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे अभी जो श्रमदान ये सारा चल रहा है, स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा जो चल रहा है, कि हमारा जो ऑफिस है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगी, हमारे ऑफिस के साथ मैकडॉनल्ड है। तो वो लोग जो आते हैं सारा खा पी के वो जो लिफाफे ऐसे फेंक जाते हैं। वो इट्स लाइक वेरी इरिटेटिंग, है ना? तो हम लोग हैं, मान लो आज तो हमने सफाई कर दी है, कि क्या वो लोग ये सारी चीज़ों का अवेयर हो नहीं सकते हैं कि हम वो जो लिफाफा है चाहे अपने घर ले जाकर वहाँ फेंक दें। गाड़ियों में तो लोग आते ही हैं, तो वो इतनी जगह उनके पास भी तो है ही कि उसको मैम ऐसे, है ना, वो सड़क मैम पे। इसमें भी हमने डिस्कस किया है आज के वेबिनार में यही बात भी, ये कोई सरकार के अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। तो व्यक्ति पता नहीं कब समझेंगे। ठीक है। व्यक्ति जब समझेंगे तभी सुधार होगा, तब हाँ जी। सरकार भी कुछ कर पाएगी। बाकी सरकार की पॉलिसीज हैं सारी, पहले स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, फिर रूल्स लोग फॉलो नहीं करते, फिर हुँ, वही की वही बात आ जाती है बस। फिर प्लास्टिक की तो मैन्युफैक्चरिंग देखो मैम हो ही रही है, सब कुछ आ रहा है प्लास्टिक का, वो तो है ही। और पैक्स मैं भी आप है इसमें, सब कुछ है। आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, कोई क्वेश्चन पूछना है वेबिनार्स जो आपने अभी पार्टिसिपेट किया है, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मैम। मैम आपने ही पूरा कर दिया वेबिनार, तो मेरे से तो बातें रह गई जो आपने पूरी की। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता बहुत है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ कहना चाहूँगा अगर आज्ञा हो तो। मैं राजेंद्र साहिल, DHG खालसा कॉलेज गुरुसर सुधार और स्टडी सेंटर नंबर 2277 से हूँ। बहुत ही सुंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है सरकार की तरफ से जागरूकता फैलाने का स्वच्छता के लिए, और बहुत ही सुंदर प्रयास हमारा रीजनल सेंटर जो है RC खन्ना, उसने ये उठाया है कि इस तरह से वेबिनार करके स्वच्छता अभियान चला के वो इस कार्य में अपना योगदान डाल रहे हैं। जागरूकता सबसे बड़ी बात होती है, और जागरूकता फैलाने का काम जो है वो हमारा रीजनल सेंटर जो है वो बखूबी कर रहा है, तो वो इसके लिए बहुत ही बधाई का हकदार है। जो हमारे विशेषज्ञ आज अंजू जी आए हैं, बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत ही उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से, मुझे लग रहा था जो वो केमिस्ट्री या जूलॉजी बॉटनी से संबंध रखते हैं शायद, और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने हमें बताया कि हमारे सारे जो प्रदूषण है और जो हमारे यहाँ गंदगी जिस तरह की फैल रही है उसके बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा की और उससे बचा कैसे जा सकता है। और उनकी बातें सुनते हुए मुझे दो चीजें बड़ी याद आ रही थी कि हमारा जो पुराना सिस्टम था, मैडम अंजू आप भी इससे सहमत होंगे, जो हम Yes. कृषि आधारित हमारी जो सभ्यता थी उसमें कुछ भी हाँ वेस्ट नहीं होता था। उसमें जो हाँ गोबर तक होता था जानवरों का, उसके भी उपले बना के हम उसका इस्तेमाल कर लिया करते थे। यस सर, यस सर, तो एक तो वो हमारे सामने, क्योंकि उसमें सब कुछ रिसाइकल हो रहा था, हर यस चीज सर, रिसाइकल हो रही थी उसमें। और एक तो उससे हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि आज के जमाने में हम हर चीज को रिसाइकल करें। प्लास्टिक की बात चल रही है, वो नेसेसरी इवल है हमारे लिए, हम उसके बिना भी नहीं रह सकते, उसके साथ रह के भी परेशानी है। तो उसका बचने का तरीका एक ये है कि आप एक बार प्लास्टिक की चीज लेके उसे हजारों बार प्रयोग करें। ये नहीं कि प्रयोग किया और फेंक दिया, प्रयोग किया और फेंक दिया, जिससे वो अधिक से अधिक उसका रिसाइकल हो सके, और जब वो पुरानी हो जाए तब उसको रिसाइकल करके नई वस्तु बनकर आ जाए और फिर उसका प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से कम सरप्लस हो उसमें, और जो हमारे पास चीजें हैं उसका बार बार रिसाइकल किया जाए। पहली चीज ये। दूसरी बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि सरकार भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाए। सरकार की जिम्मेदारी यही कि वो रिसाइकलिंग प्लांट लगाए हर चीज के, और वो उसको रिसाइकल उन चीजों को करे। और जो व्यक्तिगत रूप में जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं देखता हूँ अपने आसपास, वो बड़ा अजीब सा होता है कि लोग एक पॉलीथीन का लिफाफा लेते हैं, सारा कूड़ा करकट उसमें, घर का छिलके, बाल और जो रैपर, हर चीज उसमें डालते हैं, उसके ऊपर से गांठ लगाते हैं, और पड़ोस में कोई खाली प्लॉट होता है तो वहां फेंक देते हैं। तो ये जो रवैया है ये इतना गलत है, इतना गलत है कि मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्यों करते हैं। अपने घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके दूसरों के आगे फेंक देते हैं। तो इसमें जो मैं प्रयोग करता हूँ अपने घर में, जो मैं सिस्टम करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो गीला कूड़ा जिसे कहते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, जैसे प्याज के छिलके हैं, चाय पत्ती है, या कुछ भी ऐसा जो ऑर्गेनिक है, उसको हम कूड़े में नहीं मिलाते, उसको एक अलग थाली में रखते हैं, उसको सुखा के या उसको किसी तरह जानवरों के खिलाने के काम
बहुत सारे जो आसपास पशु पक्षी हैं उनको खिलाने के काम में लाते हैं। सब्जियों के छिलके वो सब खिला देते हैं, हमने कभी कूड़े में नहीं फेंके। और जो दूसरे कंटेनर्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, वो सारे एक अलग कंटेनर में हम इकट्ठे करते हैं और उनको हम कई बार दुकानों पे पहुंचा देते हैं। पॉलीथीन के जितने बैग आते हैं, छोटे बड़े किसी तरह के भी, कागज के भी इवन, उनको इकट्ठे करके हम दुकान वालों को वापस दे देते हैं कि आप इनको फिर इस्तेमाल कर लीजिए। ये गली में जो सब्जी वाला आता है उसको दे देते हैं कि ये लो, हमारे पास इतने सारे बैग हैं, ये आप ले जाओ, इसको फिर से इस्तेमाल कर लो। तो व्यक्तिगत रूप पर भी हम काफी काम जो है वो पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकते हैं। और इससे पहले तो आनंद ही आनंद था। भोजन के लिए भी देखिए पत्तल हुआ करते थे, खा के उसे फेंक दे, हर चीज डिग्रेडेबल थी, सब जो था वो उसका क्षरण हो जाता था। आज हमारे पास वो थर्मोकोल है, वो भी नहीं गलता, प्लास्टिक है वो भी नहीं गलता। अब थर्मोकोल देखिए कितनी खतरनाक चीज है, भोजन करके वो फेंक दिया, वो गलता ही नहीं है, तो क्यों नहीं उसको धो के फिर इस्तेमाल कर दिया जाए, फेंकना क्यों है उसे। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं कि व्यक्तिगत लेवल पर भी हम इस तरह का कुछ करें जिससे हम इसे पर्यावरण के प्रति अपना योगदान करें। तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगर व्यक्तिगत लेवल पर हम इस तरह के छोटे छोटे भी आयोजन कर लें कि कूड़े को देख लें कि ये कौन सा किस काम आ सकता है, कौन कहाँ जा सकता है, तो हम काफी मदद कर सकते हैं पर्यावरण की। और इसका फायदा मैं फिर अपना ही उदाहरण देके आपको बताऊं कि जो हमारा बाहर कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आते हैं म्यूनिसिपैलिटी से, वो कहते हैं आपके यहाँ कूड़ा ही नहीं होता। मैंने कहा मैं कूड़े को खुद ही रिसाइकिल करता हूँ, इसलिए कूड़ा नहीं होता। तो वो बाकी लोग 70 रुपए देते हैं, मैं 100 रुपए देता हूँ, वो कहते हैं आप पैसे भी ज्यादा देते हो, कूड़ा भी नहीं देते, ये क्या चक्कर क्या है। तो फिर उन्होंने बाकायदा यहाँ एक बार म्यूनिसिपल कमेटी में मुझे बुला के मेरा लेक्चर करवाया कि घर का कूड़ा किस तरह से उसे करना चाहिए। तो एक बार मैं फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने रीजनल सेंटर को भी और विशेषज्ञ अंजू जी को भी कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे अंदर ये जागरूकता पैदा करने का एक प्रयत्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक्स सर। थैंक यू डॉक्टर राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि घर का जो वेस्ट है हम खुद ही मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, अगर घर में सब्जी या साग जो ऐसे भी छीलते थे, जो वेस्ट होती थे, हम कहते थे बाहर रख दो, कोई जानवर आके खा लेगा, है ना। जैसे पशु आते हैं तो गाय भैंस आती है तो वो खा लेती है, तो स्पेशली एक जगह बनाई जाती थी। लेकिन अब है कि हम हर एक चीज है कि चलो लिफाफे में डालो और फेंको, है ना, क्योंकि वो हमारा प्रोविजन हो गया है कि कूड़ा ले जाने वाले आएंगे और ले जाएंगे। तो उससे है कि पोल्यूशन तो फिर वो बढ़ ही रही है। तो वही है कि अब हम अवेयर, मेन है कि अवेयरनेस है। अगर हम अवेयर हो जाएं कि कैसे हमें इसको सारे को मैनेज करना है, तो एक सोने पे सुहागा हो सकता है। ठीक है जी। और अभी सर से मैं बात ये डॉक्टर कौन क्या है, अविनाश। हाँ अविनाश जी, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ऐसे ही कहना चाहूँ, जो घर का कूड़ा है उसको अलग अलग रखना चाहिए, सूखे को अलग, गीले को अलग। उसमें क्या, यानी कि घर का जो भी कूड़ा कचरा है उसको अलग अलग रखना चाहिए। जैसे गीला अलग और सूखा अलग। जो गीला जो उसकी खाद वगैरह के यूज हो जाएगा, जो सूखा कूड़ा है उसको अलग उसमें पाओ, ऐसा ही है। ठीक है मैम। ये एक संधू जी ने काफी देर से हैंड रेज किया है, आप क्या पूछना चाहते हैं? MK संधू जी, क्योंकि जब वेबिनार शुरू हुआ था तब से ही हैंड रेज किया हुआ है। और जीरा से भी जुड़े हुए हैं हमारे कोऑर्डिनेटर, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि कुछ 2 शब्द बोलें। वो मुझे लगता है पेड़ चले, हाँ 2205 सेंटर से, अमृतसर से भी हैं। इस बीच में मैडम बटाला से और होशियारपुर से भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स जुड़े हैं, तो उनका भी इस प्रोग्राम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को कहूंगी कुछ शब्द बोलिए आप 2216 सेंटर से। हाँ जी नमस्कार जी मैम। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर।
बड़ा अच्छा लगा आज का सेमिनार हमें, और कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करनी है इसके बारे में कई चीज़ें पता लगी। कुछ तो हम करते भी हैं, पर खास करके जैसे घर की जो वेस्ट है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में आज डॉक्टर राजेंद्र जी ने बताया, तो बड़े अच्छा लगा। और हम आशा करते हैं कि आगे से हमारे ऐसे सेमिनार होते रहेंगे। थैंक यू मैम। जी आप भी पार्टिसिपेट करते रहना। हाँ जी जरूर मैम, हम लोग करते रहेंगे। और हाँ जी, राखी मैडम 2206 सेंटर से। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ बहुत जी। अच्छा लगा ये सेमिनार सुन के, और इसमें जो तरीके भी आपने बताए हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। मैम एक चीज मैं कहना चाहती थी, जैसे आप कह रहे थे कि मैकडोनल्ड से लोग खा के निकलते हैं और ये प्लास्टिक के लिए लिफाफे फेंकते हैं, तो क्या हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं हम कर सकते कि अपने पास एक प्रॉपर प्लेस रखें? और ये वैसे तो ये लीफ का भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि लुधियाने में बहुत जगह लोग पैकेजिंग के लिए पत्तलों का यूज कर रहे हैं, जहाँ पे चाट है, टिक्की है, इवन गोलगप्पे के लिए भी पत्तों के बनाए जाते हैं। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा एडवाइस किया जा सकता है कि ये भी अगर पत्तों को यूज करना शुरू करें तो शायद इतना ज्यादा हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट ना रहे। ये गवर्नमेंट कुछ कर सकती है कि इन लोगों के ऊपर कुछ लगाया जा सकता है। कैलकाटा में हम शादी में भी जाते थे तो वहां की जो प्लेटें होती थी वो पत्तों की बनी हुई होती थी, तो वो भी अगर वेस्ट में भी जाती थी तो वो मैन्योर ही बन जाती थी, उनका कोई नुकसान नहीं होता था। तो इस तरह से जितना हो सकता है अगर थोड़ा बहुत हम पत्तलों का यूज करना शुरू करें, यहाँ तो वैसे ही इतने सारे प्लांट्स है और पत्तों के वेस्टेजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो कुछ वो किया जा सकता है किसी हद तक कई जगह पे, क्योंकि कई जगह लुधियाने में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि पत्तों के वो बना के ना जो होते हैं प्लेटें वगैरह पत्तों के यूज किए जा रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा प्लास्टिक या थर्माकोल को अवॉइड करके इनको कुछ के लिए बना दिया जाए तो शायद कुछ हद तक कुछ कम हो सकता है यूज में। तो ऐसा हो सकता है, बस वही है कि जो यहाँ से अप्रूवल होती है वही रोका जा सकता है। हाँ अब जी, जैसे मैकडी वगैरह तो इंटरनेशनल चेन्स है, इसको तो है कि वो पॉलिसी डिसीजन है, तो वही लोग कह सकते हैं ना कि जब इनको चेन्स को देते हैं तो कहा जाए कि ये चीज़ें ही यूज़ करनी है, तो नेचुरली वो हम इसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है ना। और जैसे शादियों में है जो ये आती है प्लास्टिक प्लेट्स है, तो वो ना लें, अपने आप ही फिर है कि उनको बनानी ही पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन हम लोग है कि उस टाइम में तो एक टाइम पीरियड कम होता है, मान लो कल शादी है तो आज तो उठाकर हाँ लाना है सामान, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन वही है कि जब नो कहेंगे सभी हाँ लोग जी, तभी जो होएगी। तो हम कर सकते हैं। चलो थैंक यू जी, आपने पार्टिसिपेट किया। हाँ जी, सुषमा मैडम बटाला से। अब अपने आप आइए ना, हम बार बार एक एक को कहकर थोड़ा सा लगता है कि जबरदस्ती कह रहे हैं कि कुछ बोलो, है ना। और कोई आपसे? हाँ, ये अमृतसर से मैडम होंगे, इधर बैठ है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना। और डॉक्टर परमेश जी एंड पप्पू सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो? हेलो, हाँ जी। नमस्कार मैम। हाँ जो जी। अंजू मैडम ने आज का जो वेस्ट मैनेजमेंट पे जो आज लेक्चर दिया बहुत ही नॉलेजेबल था मैम, और बहुत कुछ वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में चीजें पता चली है, इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कितनी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं इनसे। तो ये हम सबको भी अपने ग्राउंड लेवल से ही अगर हम ही इनको पालन करेंगे तो फिर देखा देखी सारे लोग भी इसका पालन कर सकते हैं। तो आज का जो वेबिनार था बहुत ही नॉलेजेबल था मैम। थैंक यू अंजू मैम एंड अदर ऑर्गेनाइजर्स। और जो हमारे स्टाफ्स जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब भी अपने घरों में अपने फैमिली मेंबर्स और अपने आस पड़ोस को भी सबको ये सूचित करें कि अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट को, अगर आपको नॉलेज है तो थोड़ा सा उनको भी आगाह करें कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग से उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको भी थोड़ा सा बताएं।
थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, हम 2202 सेंटर से मैडम। मैम मेरा ना ये थोड़ा सा हैंग हो गया इसी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही मैम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये मैम, ये टॉपिक तो बड़ा अच्छा है और मैम ने भी बड़ा अच्छा बताया, और आपका भी जो एफर्ट्स है इट्स वेरी वंडरफुल। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैम, आप वो जो हम प्लास्टिक और ये जो यूज करना, ये हमारी हैबिट में इस तरह से शामिल हो गया ना, इससे नकारापना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत असंभव लगता है। मैं वैसे रोज हमारे यहाँ, हम पंजाब में रहते हैं, गुरु और पीरो लंगर लगती है ना मैम, हम सड़कों पे देखते हैं मैक्सिमम, या घरों पे भी फंक्शन होते हैं, मैक्सिमम जो वो डिस्टरबेंस है ना, वो डिस्पोजेबल से होती है। और आप देखिए पानी की बॉटल्स, ये वो, हम अब फैशन बन गया है कि एक आध सिप लेते हैं, फिर वही छोड़ के फिर दूसरी, मतलब मैक्सिमम ये है। मैं खुद ही सोच रही थी इसको अवॉइड पता नहीं कहाँ कैसे किया जाएगा। अब ये हमारी आदत में शामिल हो गया ना इस कदर। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है, लेकिन अब पता नहीं, या तो जो बुरी आदतें पड़ गई हैं ये कैसे छूटेगी, मुझे तो खुद नहीं, मतलब क्वेश्चन चिन्ह है। हाँ मैडम, अभी तो ये आदतें तो हमें कोशिश करके ही। हाँ, वो तो कुछ, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रही हूँ, बड़ी ईमानदारी से बता रही हूँ कि हमें करना चाहिए, लेकिन हमें, अब पत्तल है, पत्तल भी देखिए, अब पत्तल पे भी वो जो कई बार वो हम लोग खाते हैं, तो अब हम हाथ पे कैरी करना, अगर थोड़ी अच्छी क्वालिटी है तो वी कैन अरेंज, मतलब हाथ में रख के खा सकते हैं, अदरवाइज पत्तल पे खाना भी बड़े मुश्किल है। फिर वो भी आगे से मिट्टी मुट्टी साफ की हो, मतलब मुझे तो समझ नहीं लग रहा कि इसका कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा कि इसको करना कैसे है। मैम, इसका तो यही है, मतलब कि हाथ में रोटी खाओ। ठीक है ना। हाँ, हाथ में रोटी खाओ, और जैसे हमारे वो पंजाबी में बोलते हैं भूख से पानी पियो, तो ठीक है। लेकिन ये बड़ा है, मुझे तो लगता है अवेयरनेस होनी चाहिए। पहले तो एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करने के लिए प्लांटेशन बहुत जरूरी है, वो उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद ये खाद, मैडम मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, हमने थोड़ा सा अपने घर में मिनी गार्डन सा थोड़ा सा लगाया हुआ है, उस प्लांट्स में भी मैम अगर हल्की सी हम स्प्रे नहीं ना करते, वो कीड़े लग जाते हैं, और कोई बैंगन वैंगन के जो पौधे लगाए ना वो नहीं होते। मैं तो मतलब जहाँ तो कह लीजिए हमारे में कुछ कमी है, लेकिन वो मैडम करना ही पड़ता है ये मैडम, इसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा जानते हैं। वो ये हाँ कहते हैं कि जो पेस्टिसाइड के अलावा हम जो नहीं, खट्टी लस्सी वगैरह होती है, मैडम, वो सारे करते हैं। मेरे हस्बैंड ना, ही इज अ लवर ऑफ वेजिटेबल्स एंड ये, वो पूछ रहे रहते हैं खट्टी लस्सी, ये करो वो करो, फिर लास्ट में ना माली को कहते अच्छा तू ऐसे कर, मिनिमम छोटे से छोटा ढक्कन थोड़ा सा स्प्रे कर ही दे। वो हाँ, मतलब फिर हम लोग कहते हैं ना बड़ा ऑर्गेनिक हम यूज कर रहे हैं, तो अब वो भगवान ही हम लोगों को बचाए तो बचाए। बाकी ये है कि हमें मैक्सिमम ये सारा कुछ ध्यान रखना चाहिए, अवेयरनेस। जैसे इस तरह के वेबिनार हो तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है हमारी दिनचर्या का। बाकी आप लोग बधाई के पात्र हैं, अंजू मैम वगैरह, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ये मेरे मनदीप संधू मैडम है असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, उन्होंने ज्वाइन किया था, मैं थोड़ी सी, मुझे थोड़ा सा काम था, मैं व्यस्त थी। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत। मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये जो मैम ने बताया, अभी बातें की हैं, सारी ईमानदारी से बातें की हैं इन्होंने, जो हम मतलब डेली लाइफ में करते हैं, मतलब पूरा ईमानदारी से बोल रहे थे मैम। पर ये अभी हम ऐसे लगता है जैसे ये बातें हमारे कल्चर में शामिल हो गई हैं,
हैबिट्स भी बन गई, हमारे कल्चर में ही शामिल हो गई हैं, खाया पिया वहीं प्लेट छोड़ दी। या जैसे मैम आप बता रहे थे स्वच्छता ही सेवा अभियान, तो देखो चल रहा है, पर मैकडॉनल्ड है आपके ऑफिस के साथ, तो इधर उधर फेंक देते हैं, आपके जितनी भी सफाई आप कर लेते हैं ऑफिस की, फिर भी आपके आसपास पड़ा होता है ऐसा गार्बेज जो है। तो ये बस कल्चर में या लोगों के मतलब खून में ही लगा लो हो जाता है शामिल। बाकी जैसे स्वामी रामदेव जी ने भी बताया कि मिट्टी के बर्तन यूज करो, इससे काफी ज्यादा मतलब हेल्थ कॉन्शियस जो हम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पत्तल यूज कर रहे हैं, तो मिट्टी के बर्तन भी यूज करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं हमारी हेल्थ के लिए। जैसे इसके वो लिए ये कहा जाता है ये आपका अपना शहर है, इसको साफ रखिए, वो कहते हैं नहीं मेरा शहर तो लुधियाना है। तो जब है ना, जब तक ये चीजें नहीं आएगी कि हाँ अपना जी, है ना, कहीं भी अपना, जाओ अगर उसको हम ये माने कि नहीं ये हमारा अपना है, तो हाँ जी फिर अपने आप ही के मन में आएगा कि नहीं वी हैव टू कीप इट क्लीन, है ना। यस तो मैम, मेन तो है कि हैबिट फॉर्मेशन है, और उसको जब तक हम अपने माइंड सेटअप में नहीं लाते हैं तो चीज़ों को लाना मुश्किल है। अगर ये हम ले आएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। मैडम सिल्वर फॉइल है ना, सिल्वर फॉइल में जिसमें हम खाना रैप करते हैं, तो एक दिन ये अचानक से रोल खत्म हो गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अंदर से मैंने वो कपड़ा, वो जिसको हम बोलते हैं पोने, वो निकाला नया, और अपने बेटे की रोटी रैप कर दी। तो मुझे लगा कि पहले तो ये मेरे को बोलेगा कि मम्मा ये क्या, चलो वो तो अभी बोला नहीं मेरे को, मेरा सर्वेंट कहने लगा मैम ये ऐसे भैया रोटी लेके जाएंगे। मैंने कहा इसमें क्या बुराई है, अभी सिल्वर फॉइल तो अच्छी बात नहीं है। तो वो जब तक वो शाम को ले नहीं ना आया सिल्वर फॉइल, मेरा सर्वेंट, नहीं भैया सुबह मुझे डांटेंगे। अब देखो पहले मैडम वही कपड़ों में, साफ सुथरे कपड़ों में, और जो बैग थे हमारी माएं जो जाती थी थैला पकड़ के, वो साफ हो जाता था। अब कौन है कैरी बैग लेते हैं, हाँ बड़े बड़े मॉलों में मिलते हैं कपड़ों के बैग, लेकिन हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, प्लास्टिक के लिफाफे यूज करते हैं, इधर आया उधर आया, तो बस क्या ये करें अब। बहुत चीजें हैं कि स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि हाँ वो ये स्टेटस सिंबल ने तो मैम हमको मार दिया है, फॉल्स स्टेटस सिंबल, और क्या, यही है ना कि इट्स अ फॉल्स स्टेटस सिंबल मैम। हाँ जी, पहले एक टाइम होता था कि हम जो एक नहीं प्लास्टिक की लेडीज बहुत अच्छी बास्केट्स टाइप बनाती थी, और वो हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों तक चलती थी, कोई भी सामान खरीदने के लिए वो ले जाते थे। और थैला जैसे है कि बड़े जब बाहर जाते थे मार्केट में तो वो थैला लेकर जाते थे, है ना। पहले तो ये तब भी तो था ही, तब माइंड में ऐसा होता ही नहीं था। अब सारी चीजें हैं कि लोगों में स्टैंडर्डाइजेशन, स्टेटस सिंबल, ये चीजें जब तक आ रही है तो कोई सुधार होने वाला मुश्किल ही है। इसलिए जब तक हम अपने आप हम अगर ऐसी बातें करते हैं बच्चों के सामने तो वो हमको आउटडेटेड कहते हैं। हाँ पुराने लोग आप बूढ़े हो गए हो, आप क्या करें। ठीक ठीक है। हाँ हाँ, चलो, हमें लेकिन समझाना हमारा फर्ज है। हाँ वो तो मैम हम कॉलेज में भी करते हैं, वो कहते हैं आप कॉलेज में भी बोलते हो, घर पे भी बोलते हो, आपका काम ही है ऐसा, तो क्या करें। वो पैकिंग करा के ना, और कोक पी के साथ में कुछ, वो अपना बड़ा समझते हैं कि बड़े हम, इट्स अ स्टेटस सिंबल। कुछ बर्गर खा रहे हैं, कोक पी रहे हैं, क्या है एनर्जी लेवल, जब कुछ भी नहीं है। बस कहते रब आसरे। बाकी बहुत अच्छा मैम, आपका हाँ सब जी, इस थैंक तरह यू। से कराएं, कुछ ना कुछ तो हम में सुधार होगा, फिर हम कोशिश करेंगे आगे। हाँ जी, हाँ जी, अब है मैडम आगे एक और सेंटर है 2205। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। ये जो आज का वेबिनार है, इट्स वेरी फ्रूटफुल एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे अभी बातें कर रहे थे हैबिट्स में लाने की, तो G20 जब हमारे अमृतसर में हुआ तो हमें बहुत सी ये प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए कि आपको ये यहाँ नहीं फेंकना है, ये चीज़ें, कूड़ा जो है उसको किस तरीके से मैनेज करना है।
वी डिड ऑल दैट वेरी पर्टिकुलरली बिकॉज हमें पता था फॉरेन डेलीगेट्स ने आना है, किस तरीके से उन्होंने शहर को प्रॉपर मेंटेन किया हुआ था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अमृतसर वाज एट नंबर 1 कंसिडरिंग द क्लेनलीनेस। तो ये हमारे जो ऑफिसर आए थे, एक हमारे भी यहाँ कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था, तो he shared that Amritsar was at number 1 when the G20 was held here। तो हमें ये तब ये सीख मिली कि अगर हम इन चीजों को अपनी हैबिट्स में लेके आए तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू मैनेज द वेस्ट। बस हमें वो आदत हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। इवन द चिल्ड्रन विल लर्न फ्रॉम अस। हम अगर वो वैल्यूज खुद पोर्ट्रे करेंगे तो वो भी हमसे इम्बाइब करेंगे। सो यू हैव टू बी द रोल मॉडल फॉर देम। सो दिस इज माय ओपिनियन दैट ऐसे वेबिनार से डेफिनेटली अवेयरनेस तो मिलती ही है, बट वो कहते हैं ना, वैल्यूज आर कॉट बट नॉट टॉट। तो आप पहले अगर खुद ऐसा बन के दिखाएंगे तो बच्चे डेफिनेटली उस चीज को स्टेटस सिंबल नहीं मान के वो चीजें फॉलो करने की कोशिश जरूर करेंगे। So thank you again for organizing this webinar. It's great learning experience for all of us, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। संधू जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ यू वांट टू से एनीथिंग? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अंजू मैम ने जो बोला कि विसर्जन करते हैं जैसे, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये आप बंद क्यों नहीं करते फिर सब जो विसर्जन करते हैं या जो मूर्ति वगैरह, वहां से गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही कि वो क्ले का ना बने? मैडम आस्था की वजह वो से भी है, ये तो सारा धार्मिक है। हाँ, देखो तो फिर इसमें वही हाँ, ये आस्था की वजह से है ना, बोलेगा तो तो इसीलिए उसकी वजह से। हाँ, तो हाँ यहाँ तो जी, ये गवर्नमेंट करे कुछ के भी वो क्ले के नहीं बनेंगे, हाँ, इको फ्रेंडली हो। अभी कर तो रहे हैं मैम, वैसे क्ले के बना रहे हैं जैसे। हाँ, इको फ्रेंडली हो फिर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, पॉल्यूशन तो कितना आ रहा है इससे भी। हाँ जी, हाँ जी, मैक्सिमम वाटर पोल्यूशन है मैम। हाँ, मैक्सिमम वाटर पॉल्यूशन इसी से आ रहा है। हाँ जी, यही है कि जो हमारा जो पंतरवाड़ा पखवाड़ा ये सारा चल रहा है, तो इसी चीज़ों को अवेयर करने के लिए ही है कि धीरे धीरे इसका होगा असर, है ना, लोगों के माइंड में कि हाँ हमें क्या हमारे फायदे में है, क्या नुकसान में है। जब तक वो खुद नहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाते तो तब तक है वो कहना भी मुश्किल ही है। लेकिन है कि हमें तो कहते रहना है ना, जैसे हमारी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट। Yes. आई थिंक ज़्यादातर सभी ने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो परमेश जी आप इसका एंड कीजिए। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं की नोट स्पीकर मैडम को देना चाहूँगा, अंजू गुप्ता जी को, जिन्होंने आज इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैडम आपको। और हम लोग इस बात की और भी भविष्य में कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के वेबिनार्स रेगुलर तौर पे हम लोग आयोजित कर सकें, जिससे कि होता क्या है कि कई बार हमें बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन अमल में लाने के लिए रह करके मोटिवेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर हम लोग करते रहेंगे, घर पे भी होता है, बच्चों को रह करके वही चीज़ रिपीटेडली बतानी पड़ती है, बड़ों के साथ भी ऐसे ही होता है। उनको भी रह करके चीज़ें सीखते रहना एक रेगुलर मैनर में लर्निंग हमारी रोज़ होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसा कि बटाला वाले मैडम ने कहा, मैडम खुद प्रोफेसर हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे जीवन में आत्मसात कर ली है हम लोगों ने, जिनको कि निकाल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि अनलर्निंग भी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमने जो कुछ भी सीखा है उसमें से जो भी चीज़ें गलत हैं वो भी वेस्ट मैनेजमेंट के तहत आनी चाहिए, और उसको भी हमको रह करके दिमाग से, अपने जहन से हटाना बहुत ज़रूरी है। जितना भी हम अपने रेजिड्यूज़ हैं दिमाग की तौर पे, शारीरिक तौर पे, जहनी तौर पे, उनको रह करके जितना हटाते रहेंगे, सोसाइटी के बेहतरी के लिए हम उसको अपने पर्सनल तौर पे कंट्रीब्यूट करने में एक
अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो किसी और की तरफ देखने से बेहतर है कि शुरुआत हम अपनी तरफ से करें और दूसरों को भी इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती इस काम को नहीं कराया जा सकता। सरकार की तरफ से बहुत से प्रयत्न किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक व्यक्तिगत स्तर पर हम अपनी तरफ से मोटिवेशन नहीं लाएंगे, कोई भी इस मिशन को सक्सेसफुल नहीं कर सकता। इंडिविजुअल एफर्ट ही इस चीज़ को सक्सेसफुल लेवल पर पहुंचा सकता। तो हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पे ही इन चीज़ों को शुरू करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में कूड़ा करकट भर गया उसको भी निकालने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ें, कुछ भी आउटडेटेड नहीं होता। पुरानी चीज़ें बहुत ही वैज्ञानिक स्तर की थी, हम उसको ना समझ पाए, हमारी आगे की जनरेशन ना समझ पाए, ये हमारी और हमारी आगे की जनरेशन की मूर्खता है। उसको समझने के लिए अगर उस स्तर पे हम जा पाएंगे, वही हमारी वैज्ञानिक सोच का परिणाम होगा। और हमारी आगे की जनरेशन्स को अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं आज की डेट में, तो इस दिशा में हमको सोचने के लिए आज बाध्य होना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी एक बार अंजू मैडम को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। रिस्पेक्टेड रीजनल डायरेक्टर मैडम डॉक्टर संतोष कुमारी जी का भी मैं इस प्रोग्राम का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जो भी कोऑर्डिनेटर्स हमारे साथ आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे, इस वेबिनार में, उनका भी मैं अभिनंदन के साथ साथ धन्यवाद भी देता हूँ, जिनका मैं अभिनंदन बाद में कर पाया। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इस टाइप के जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें भी वो लोग हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए लगातार हमारे साथ शामिल रहेंगे। जो भी स्टाफ के मेंबर्स इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने में हमारे साथ सहभागी रहे, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम को अब फॉर्मली समाप्त करने की रीजनल डायरेक्टर मैडम से मैं इजाज़त चाहता हूँ, ताकि हम इसको समाप्त कर सकें। मैं सभी को कहूंगी आप अपना वीडियो ऑन कर ले, एक स्क्रीनशॉट, ताकि सभी का लिया जा सके ना। आप सभी लोग कृपया अपना वीडियो ऑन करिए, वो भी लोग कर सकते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग सच ए नाइस वेबिनार, और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन मैं यही कहूँगी कि हम एक प्लेज लें कि जिसमें है कि हमें डिफरेंट वेज निकालने हैं कि हाउ टू मैनेज दिस वेस्ट, है ना। वेस्ट को कैसे रीयूज करना है, कैसे मैनेज करना है, ताकि शुरुआत हम अपने लेवल पे, हर एक फैमिली के लेवल पे, अपने घर से शुरू करें। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। 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 नमस्कार मैम।